Hello, it is I'm audible? Yes, sir. Yeah, thank you, beta. Okay. So in the previous lecture already we have seen the geometric transformation of the 2D object and 3D object. In a 3D object we have done with the only rotation along the z-axis. So we are not getting the much question on the 3D operations because we need to multiply by 4 matrices sometime. So we are getting the very easy type of the question. Only you can say simply one type of the operation. It may be a rotational, it may be a mirror, but in a 3D transformation there is no need to make the CT matrices, composite transformation matrices नहीं बनाना रहता है as it is a जैसे हम लोग को 2D में करना पड़ता था. When we are making that CT matrices, composite transformation matrices कई बनाते हैं when we have a numbers of the operations. जब more than one operation we have, that time we are making the CT matrices. तो यहाँ पे CT matrices बनाने का जरूरत नहीं पड़ता इन 3D ऑपरेशन में. तो यहाँ पे दिस इज अ मॉड्यूल 2. इन अ मॉड्यूल 2 फर्स्ट पार्ट में हमारा 2D एंड 3D ट्रांसफॉर्मेशन, रोटेस में मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन प्रॉब्लम, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ट्रांसफॉर्मेशन, मिरर वगैरह ये सब हो गया हमारा. So now we'll see the artificial intelligence in a design and manufacturing, representation of the knowledge and knowledge-based engineering. So if you're going to see a today world, most of the object is based on the AI. So we must know what is the AI, how the AI works, and how we can use this AI in a design and manufacturing, in a mechanical. So when we are talking about the, if I'm going to design any component, so what is the role of artificial intelligence in that design part? And if you're going to with the manufacturing, so how it will contribute in a manufacturing operation. So already you are studying the PPC. So in that PPC, production planning and control, so you can operate that PPC through the AI. Means if you are going to see just in time का role क्या है, how you can integrate that just in time with the AI. So if you are going to see that manufacturing process means हम लोग यहाँ पे मशीनिंग को भी लिंक कर सकते हैं. We can link the planning and scheduling part of the components. So here AI is a very important part. Once we complete with the AI, after that we'll see the what is the knowledge based engineering and how it's contribute there in a mechanical design and manufacturing part. In a second part, we are going to see the application programming interface, that is nothing but the API. API is a very important term in today's world when we are using the IoT things. जैसे Internet of Things जब से हमने use करना चालू किया है, internet related application use करना चालू किया है, so जब से we are going to give them more focus to API. So already we are going to see first what is the API. API आज जितना भी today's you are going to use a lots of application like a ticket booking application ले लो, money transfer applications ले लो, anything. Ticket booking is any ticket booking, movie ticket booking रहने दो, railway ticket booking रहने दो, and flight ticket booking रहने दो. If you are going to see there, that type of all the applications is based on the application and programming interface. सबका सब एप्लीकेशन जो है, जो भी एप्लीकेशन तुम अभी यूज कर रहे हो वो एक सर्वर से इंटरफेस्ड है. सो दैट इज नथिंग बट द एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड विल सी व्हाट इज द रोल ऑफ दिस एपीआई इन आवर manufacturing and design parameters of the mechanical engineering, how to add the script. So if you are going to see what is a script, so here we are not going to write the script. Script means we are not going to write any coding languages. So but we can try to import some coding languages in the Fusion 360, and we'll try to see कि वो जो coding है, that coding maybe in a C++, Java में रहेगा, तो उसको हम लोग को import करना है, and we can see कि कैसे component बनता है. I think already we did the lots of practical in a practical session. We already did the Fusion 360. So in Fusion 360 we have a tool that is nothing but the add-ins. In add-ins we can add the we can import the script and we'll get the object. Means how it will affect our software, कैसा ही affect करने वाला है, we'll see in a Fusion 360. So today we'll start with the first programming.
बेसिकली प्रोग्रामिंग कितने टाइप का होता है, व्हाट इज रोल ऑफ प्रोग्रामिंग इन दिस मॉड्यूल. सो बेसिकली perspectives on programming. So where we are going to see the function oriented programming, object oriented programming and constraint oriented programming. Anyone is having any idea regarding the function oriented programming? Yes, anyone? What is the meaning of function oriented programming? Have you heard this word anytime, anywhere? Yes sir. Yes, what is the function? Yes sir. Yes, what is the function oriented इसमें programming? हम लोग पहले एक कोई फंक्शन बनाएंगे, फिर अगर हाँ. वो फंक्शन को कॉल करेंगे तो उसमें कुछ पैरामीटर हम लोग डालेंगे, तो हाँ. वो अपना कोई भी काम करके कोई भी कोड एग्जीक्यूट करके वापस अपने को रिटर्न करेगा वो फंक्शन. Yes, so here we are going to use the different functions. Already you did the lots of programming, I think Java and C already did in the first year. So here we are going to use the functions. यहाँ पे ऐसा भी बोल सकते हैं when we are talking about the we have given to the one function to one input, और वो कैसे अफेक्ट करने वाला है अदर को, कैसे इसका इनपुट ट्रांसफर होने वाला है अनदर फंक्शन को. इफ यू आर गोइंग टू टेक द एक सिंपल एग्जांपल कि मुझे 4 + 4 into 3 मल्टीप्लाई करना है. So here first function should be work on the 4 + 4. When we'll get this one, then only it is going to multiply with the 3. Okay. So here we are going to see the कि पहला function का sequence क्या होने वाला है. Which function is going to be work first, and after that function is input will for the second one. So here 4 + 4 ये मेरा क्या होने वाला है, यहाँ पे operation perform होने वाला है addition का, and this 4 + 4 will be input for the second operation. Then only this 8 into 3 will give the output. So here function oriented programming is very important, but we are not going to see the programming here in this module. We are going to see what is the use of that. If you are going to see the object oriented programming, so already you have learned the object and class type. So what is the meaning of object and class? Have you heard this two term, object and class? Yes, anyone? Yes, object oriented programming. Sir, in object-oriented programming, there is a data type called data type like object, which has various data like it's like tuple. It can store a different kind of data related to it. Yes, if you are going to talk about the object-oriented programming, so we are going to see the one object and then all the function. If you are going to see कि मैंने बोला कि if I am going to take the dog, यदि मैंने बोला dog is a one object. So we need to describe each and every term related to dog, including color, including the eating, everything. यदि bite करता है तो that we need to include. So here we are going to give the full details related to that object. एक ऑब्जेक्ट रिलेटेड हम लोग पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन डिस्क्राइब करते हैं, मतलब एक पूरा का पूरा टर्म्स भी मुझे पता होना चाहिए कि विच ऑब्जेक्ट्स ये बिलोंग करता है. यदि मैंने बहुत सारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है एक जगह पे, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्लास. सो इन अ क्लास वी कैन पिक द ऑब्जेक्ट एंड फ्रॉम द क्लास कि भैया ये क्लास है, इसमें वी हैव अ नंबर ऑफ द ऑब्जेक्ट. सो इफ आई एम पिकिंग द वन ऑब्जेक्ट, सो वी आर टेकिंग द ऑल डिटेल्स ऑफ द दैट ऑब्जेक्ट. तो ऐसा अभी अपनी प्रोग्रामिंग क्या रहेगा, बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट रहेंगे जिसके ऑलरेडी प्री डिफाइंड थिंग्स रहेगा. ठीक है, जैसे मैंने बोला कि मुझे कुछ मल्टीप्लिकेशन करना है, तो उसके लिए या मुझे कोई इक्वेशन सॉल्व करना है, ऑलरेडी दैट इक्वेशन इज स्टोर्ड इन सम ऑब्जेक्ट. तो उसका जितना भी पैरामीटर है वी कैन पिक दैट फ्रॉम द क्लास. तो जब भी प्रोग्रामिंग करना चालू करते तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग एक क्लास में से वी आर प्रिफरिंग द ऑब्जेक्ट. सो जब वो ऑब्जेक्ट लेते हैं, मतलब ऑब्जेक्ट रिलेटेड जितना भी इंफॉर्मेशन है वो सब का सब मेरा यहाँ पे आ जाता है. अब उस ऑब्जेक्ट के थ्रू में वी कैन मॉडिफाई, वी कैन चेंज, बट उसका जो कंस्टेंट है उसको चेंज नहीं कर सकते. सो वी आर गोइंग टू सी दी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, मतलब एक ऑब्जेक्ट रिलेटेड ही पूरा का पूरा प्रोग्रामिंग करने वाले हैं, इंक्लूडिंग द ऑल डिटेल्स. लाइक एग्जांपल ऑफ द डॉग यदि लेते तो डॉग रिलेटेड ऑल द इंफॉर्मेशन वी आर गोइंग टू gather here and will write the program. Okay, and if you are going to see the next one is a constraint oriented programming. So we have a constraint already, मुझे पता है कि if we have any constraint related to input, कि भैया ये input यहाँ से आएगा, कब आएगा, that is a constraint. Then when we'll get that input, then we'll proceed for the further. So initial input जब आने वाला है, that is a condition and constraint based.
कि जब ये रीच करेगा, जैसे यहाँ पे हमने बोला कि रूम टेम्परेचर इज गोइंग टू बी 30 डिग्री सेल्सियस, देन ओनली दिस machine is going to start working. If temperature is less than that, so it will not work. Okay, so we'll maintain the 30 degree temperature at least. So 30 degree जब होएगा तो environment temperature is going to be 30 degree, then the input will start. Otherwise वहाँ पे वो work नहीं करने वाला. So sometime that input is depend on the constraint. कि भैया constraint है कि भैया 30 degree का temperature we need to maintain. So this three types of programmings are mostly used. ये तीन टाइप का प्रोग्रामिंग हम मैक्सिमम प्लेसेस पे देखते हैं. दैट इज नथिंग बट द फंक्शन ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, अदरवाइज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड कंस्ट्रेंट एंड ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. ओके, नाउ this very important term is nothing but the AI, artificial intelligence in a design and manufacturing. So first we'll see the what is the AI. For that I just initially I will show you one video. After that we'll go with the theoretical part. Let me share that video. I'm just sharing the video with the audio. The audio नहीं आया तो let me know. Just minute. First we'll see the what is the AI. Audio आ रहा है? Yes. नहीं सर. No, sir. Sir. Okay. Okay. We're all used to the instant connectivity that puts the world at our fingertips. From desktops or devices, we can purchase, post, pin, and pick anything, anywhere. We are connected to the world and each other like never before. But how does it happen? How does data get from here to there? How do different devices and applications connect with each other to allow us to place an order, make a reservation, or book a flight with just a few taps or clicks? The unsung hero of our connected world is the Application Programming Interface, or API. It's the engine Yes, under मैंने and is behind the API लगाया है. एक we'll go with the artificial intelligence. Put yourselves in the shoes of an early 17th century human. The industry then was extremely slow. Workers had to craft items from hand, and mass production didn't exist. To workers of that age, today's world would seem magical. For them, a 50-story building would be impossible to make. What changed between the 17th century and today is machines. The Industrial Revolution allowed us to build products at faster rates we had ever seen and allowed us to scale up our creations to sizes never possible before. Skyscrapers, massive ships of steel, cars, and the furniture in your home, as well as the systems derived from them, such as the shipping industry, transport across hundreds of kilometers in a day in cars, and the buildings you have grown accustomed to, seen daily, are all possible because of the Industrial Revolution. What the Industrial Revolution did was remove the physical labor from human hands. Not bound by our bodily constraints, we now have machines, like cranes and cars, that could lift weights hundreds of times heavier than us. They help us achieve things with their immense physical strength. Artificial intelligence has been hailed as the next industrial revolution. People think they will change the world by providing smart solutions. Everything solved by AI. Customer service? Replace that with a bot. Data analysis? Replace it with unsupervised learning Audio आ रहा है ना? Correct? Yes. Yes, Yes, sir. sir. algorithms. Yes, sir. Replace it with Amazon Go. All people can think of is how AI can solve existing problems. What they don't understand is that it will solve problems that we didn't even realize existed. We must stop thinking of AI as only solving current problems or slight variants of them. An average 17th century man did not know that he wanted a 50-story building or a machine that would allow him to travel 100 kilometers per hour. Henry Ford is known for saying, "If I had asked people what they wanted, they would have said faster horses." Instead of thinking of improvements to current systems and industries, think of completely new industries AI has the potential of creating, for it is the products that create new industries that do the best.
Artificial intelligence has the capacity of understanding so much more than we do. The barriers of seemingly incomprehensible theories of science will be broken easily by the machines of the future. Physical problems, like we solve thousands of times faster than humans could, not only AI will optimize many of our systems, but also create new jobs. We don't know the rate at which it will do this. However, research firm Gartner further confirms the hypothesis of AI creating more jobs than it replaces by predicting that in 2020, AI will create 2.3 million new jobs while eliminating 1.8 million traditional jobs. Just like AI took away the physical constraints of humans, AI will be able to take away our mental constraints. Just like machines whose strength is hundreds, if not thousands of times stronger than us, AI's intelligence will be hundreds, if not thousands of times smarter than us. But after being liberated of both hard physical labor and mental work, what will humans have left to do? What do you think are the most fantastical things yet to be solved by artificial intelligence? Thank you for watching. Okay, so here we'll see the what is the artificial intelligence in a design and manufacturing. So if you are going to see the artificial intelligence, this terms nowadays very popular. तो इसमें क्या होता है? Anyone? What is role of artificial intelligence? Yes. ये humans के repetitive काम को खुद कर लेता है. Yes, it's behave like a human. Means जो ह्यूमन करने वाला है that instruction according to that programming वो क्या करने वाला है everything is going to be done by the mechanism. So यहाँ पे the program that behave like a exactly like a human, program that operate internally as a human to computational system that behave intelligently and rational behavior. Basically here we are going to see the how it's work. Suppose that if we have seated in a room और मुझे टेम्परेचर बहुत ऐसा लगा कि नाउ टेम्परेचर इज वेरी लो, ओके, एंड वी नीड टू रीसेट द टेम्परेचर. सो दैट टाइम वन पीपल इज गोइंग टू बी पिक द रिमोट एंड दे आर गोइंग टू सेट द टेम्परेचर अगेन अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट. बट नाउ दिस इज पॉसिबल थ्रू द AI. दैट AI इज गोइंग टू बी measure the outer temperature, means environment temperature outside of the room, and inner temperature, and they will calculate the comfortable temperature in the room, and according to that AC temperature is going to be set. So there is no need to set the temperature and there is no need to give the instruction. Now if you are going to see the nowadays the fan and ACs are controlled through the Alexa. What is that? Anyone? That's come under AI? Yes, sir. That is come under AI because you have given the instruction there. So that is come under IoT, Internet of Things. If you are giving the instruction to Alexa, he just decrease the temperature or increase the temperature, set the temperature on that degree Celsius. So that is the part of IoT, Internet of Things. बट व्हेन यू आर गोइंग टू कि भैया मुझे ऐसा फील हो रहा है कि अब ये टेम्परेचर मुझे सेट नहीं करने का, बट अकॉर्डिंग टू माय कंफर्टेबल टेम्परेचर दैट एसी टेम्परेचर शुड बी सेट. तो क्या होना चाहिए? अभी मुझे लगा कि अभी टेम्परेचर मेरे को ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है, सो वी नीड टू इंक्रीज एंड डिक्रीज द टेम्परेचर. सो देयर इज नो नीड टू गिव द इंस्ट्रक्शन. मेरा कंफर्टेबल टेम्परेचर कितना है वी मस्ट नो, वी नीड टू प्रोग्राम अकॉर्डिंग टू दैट. दे विल कैलकुलेट द इनर एंड आउटर बोथ एंड दे विल ट्राई टू कीप द टेम्परेचर एट दैट पॉइंट. So there is no need to require कि भैया क्या रखना है, इंस्ट्रक्शन मिल रहा है नहीं मिल रहा है, नहीं. They will try to keep the things at that particular temperature. That is again part of the artificial intelligence कि उसने खुद को intelligently they have sensed the things and work on that. If you are going to see, this is a lots of industrial field and operation is done through the artificial intelligence. Now this test is very important to check the efficiency of the AI. Means if you are going to see humans are very intelligent, so our system is work intelligently or not, we need to test to the this tuning test.
this through the Turing test, we need to find out कि if what you have designed through the AI वो इतने efficient है या नहीं. If we are going to see कि भैया ये AI की थोड़ी जगह पे यदि कोई आदमी को रखता था तो that person will work more efficiently. So you need to check that कि what you have designed in AI and what you have a human. So दोनों में कितना ही difference है. So for that we can perform this Turing test. So in that one we are going to here this very simple mechanism. This is a one human questionnaire here. They are going to be asked the question to both. They will ask the question to the AI, this computer respondent, and they are going to ask the question to the human respondent. And they are going to collect their answer. So if you are going to see there, this dotted line is going to be a question to the respondent. यहाँ पे question is sent to the respondent of the computer, and here similarly question is sent to the human being. And again they are collecting their data from this. So according to that they will judge कि AI will work faster or human respondent is work faster. So with that of this Turing test you can find out how efficient AI you have designed. Okay, so this is called the intelligent mechanism must be a produce response that we are बेसिकली जब भी हमको कोई भी चीजें आती है जैसे बोलते हैं ना कि यार अभी टिकट बुकिंग करने के लिए इफ यू हैव विजिटेड एनी वेंडर अरे इससे अच्छा तो पहले मैनुअली था फटाफट लिख के दे देता था सिस्टम इज टेकिंग टू मच टाइम बहुत बार तुमने अभी nowadays net is very fast but if you're going to steer back so you can find out कि this when we have started with the computer and other parameter so everyone is complaining कि भैया fast नहीं चल रहा है इससे अच्छा तो manually हो जाता था but how we can check कि भैया same type of efficiency same type of precision we are getting through the manually तो ये सब चीजें we can check through this Turing test so AI is work like a human being they will sense the thing they will work according to human but efficiency and other parameter we need to check through this Turing test. This is the application सर of इसमें yes कंप्यूटर और ह्यूमन को कौन से टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं that is depend on कि how you what you have designed. अभी तुमने बोला कि if you have given the instruction कि भैया ये यहाँ पे मशीन x and y z मशीन is going with the sub operation यदि इसमें ऐसा हुआ तो तुम क्या करने वाले हो जैसे तुमने बोला अरे ये यहाँ से स्मोक आ रहा है तो पहले ह्यूमन बीइंग क्या करने को देखता है कि भाई बंद करो या यहाँ से निकलो करेक्ट है यस so they are going to send the same type of condition to both and they will check कि भैया कौन कितना precisely and कितना early response किया so if you done with the or house with the AI से तो AI के थ्रू भी ऐसा कुछ सिस्टम होता है कि भैया स्मोक या फायर जैसा कुछ चीजें होती हैं तो उस समय AI कैसा वर्क करने वाला है तो ऐसे ह्यूमन बीइंग क्या बोलेंगे अरे कहीं पे फायर या वाटर है या कुछ है जिससे हम लोग इसको बंद कर सके वैसा देखोगे यू विल ट्राई टू डिस्कनेक्ट द मेन इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई को पहले कट करने का देखोगे तो वैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसा वर्क करने वाला कितना एफिशिएंटली वर्क करने वाला So if you are going with the basic example, तो ये type का condition will give and according to that we'll check out कि who is responded very fast. अभी मैंने डिजाइन किया है many machine related algorithms AI, okay? And that time we'll check कि भैया कौन जल्दी कर रहा है. वो सामने वाला इतना कोडिंग करने के बाद मेरा इस पे कंपोनेंट बहुत जल्दी बन के आया या मैन्युअली बन के आया या दोनों सेम टाइम पे बन के आ रहे तो प्रिसीजन किसका हाई है. Okay, so if you are going to see, if you see lots of videos कि भैया मैन्युअली कितना फास्ट काउंटिंग करते हैं पैसे का बीच में अभी तुमने बहुत सारे वीडियोस देखा रहेगा अभी उसके हिसाब से देखेंगे तो अरे यार फिर मशीन से तो ज़्यादा फास्ट काउंट कर रहा है तो यदि वैसा रिस्पोंडेंट ह्यूमन रिस्पोंडेंट रहेगा तो AI को हमेशा फेल किए रहेगा करेक्ट है सो हाउ यू गोइंग टू चेक द थिंग्स आई थिंक सबने वीडियो देखा रहेगा कि वो चाइनीज लेडीज इज काउंटिंग वेरी फास्ट बैंकर करेक्ट देखा है यस और नो हाँ सर देखा है हाँ यदि उसकी जगह पे तुम्हारा मशीन रहेगा वो रहेगा तो क्या बोलोगे कौन सा बेटर है मशीन व्हाई वो चाइनीज कभी भी धोखा दे देगी no re beta see after that you need to check that कि
both are running यदि 10 times तो precise कौन सबसे ज्यादा है. And second thing is what, when you're going to see कि Chinese is going to be count the things, वो सिर्फ काउंट करने वाला है, उसमें असली है नकली है, we are not going to see, is not going to be fine, समझा? But your machine is going to definitely do that. Means if you're done with the such type of coding कि भैया ये ऐसे टाइप का कुछ दिखेगा तो you need to reject that. But that is not possible with that. So such type of things you need to compare and you can say कि भैया हमने जो डिजाइन किया है that is a better than the human respondent. Okay, so sometimes बोलते हैं ना ये programming is very lengthy, it's taking too much time to run. तो यदि तुमने ऐसा कुछ एल्गोरिथम बनाया है कि it's taking too much time, it's required more number, very high numbers of inputs, so sometimes that will be not feasible. अभी पता चला कि हमको क्या क्या इनपुट चाहिए, वो सब इनपुट गैदर करने में is taking too much time. So sometimes that AI will not work. तो यहाँ पे nowadays everything is connected with this two term. जो अभी हमने API का थोड़ा वीडियो देखा, that API, AI और IoT. IoT कितने लोगों ने सुना है? इंटरनेट ऑफ द थिंग्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इंटरनेट ऑफ द थिंग्स कितने लोगों ने सुना है? यस, एनीवन? आई होप आई एम ऑडिबल. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. देखो सिंपल सा बात है बेटा कि nowadays we are very used to the smartphone, laptop, computer, internet. Okay, so nowadays internet of the things. अभी बीच में कितना ऐड आता था कि भाई कार में बहुत बाहर बहुत गर्मी है, समर का पीक सीजन चालू है, पीक टाइम चालू है, एंड यू आर इन अ सिटेड इन अ कार, और कार में टेम्परेचर अपना कंफर्टेबल टेम्परेचर जोन में हो तुम, नाउ यू गोइंग टू बी अ होम, तो होम पे एसी कौन चालू करेगा? और वो तुम ऐसा भी डिज़ाइन नहीं कर सकते कि भाई वो मैं इतने बजे ही हो जाता हूँ तो इतने बजे चालू कर दे. सो व्हाट यू हैव डिसाइडेड, यू हैव जस्ट कनेक्टेड विद सम मैसेजिंग एंड इंटरनेट थिंग्स के थ्रू. करंट क्या निकला उस समय, यू हैव जस्ट सेंडेड द सिग्नल टू योर सिस्टम कि नाउ आफ्टर 20 मिनट आई एम गोइंग टू रीच, तो अकॉर्डिंगली दे विल स्टार्ट द एसीज. सो किसके थ्रू पॉसिबल हो? ये एआई के थ्रू पॉसिबल हुआ है कि आईओटी के थ्रू पॉसिबल हुआ? IoT. IoT, that is done to the IoT. वहाँ पे इंटेलिजेंस है उसका, बाकी सब है, लेकिन ये स्टार्ट कहाँ से हुआ? दैट इज स्टार्टेड टू द IoT, इंटरनेट ऑफ द थिंग्स. You have internetly connected, we have sent the signal, after that they work. So nowadays most of the mechanical machines work on the IoTs. Industry are switching to the IoT side. कि भाई हमको कहाँ भी बैठे रहे, अकॉर्डिंग टू थ्रू द इंटरनेट, थ्रू द थिंग, ये जो अभी एलेक्सा का कंसेप्ट है, दैट इज अ कंसेप्ट बेस्ड ऑन द IoT. IoT बेस्ड कंसेप्ट है, मतलब विंडो से लेके फैन से लेके यू आर जस्ट कंट्रोलिंग एवरीथिंग. लेकिन उसको सिग्नलिंग कैसे हो रहा है? यहाँ पे तो बोलेंगे सर ब्लूटूथ के थ्रू है, ये है, लेकिन यदि तुम उसको ब्लूटूथ के रेंज से 10 मीटर से ज्यादा से ऑपरेट करो तो दैट टाइम यू नीड अ नेट कनेक्शन. So that time this IoT is coming picture. And yes, there is a AI. जितने भी सिस्टम है आज के टाइम में, हर सिस्टम में AI is there. अभी बहुत सारे टीवीज वगैरह देखोगे कि भाई बाहर का लाइटिंग कंडीशन देख के भी दे आर चेंजिंग देयर स्क्रीन, उसके हिसाब से एडजस्ट करते हैं. यस, इट इज पॉसिबल. यस और नो? Yes, sir. Because there is a light sensor, they are going to detect the intensity of the light outside their environment, and according to they will send the instruction and तुम्हारा स्क्रीन उसके हिसाब से सेट हो जाएगा. तुम कब रिमोट उठा के बोल रहे हैं बहुत ब्राइटनेस है कम कर देते, या ब्राइटनेस जा रहा है तो वी आर गोइंग टू चेंज. सो दैट इज अ पॉसिबिलिटी विद दिस दिस. ओके, सो दिस इज द एआई एप्लीकेशन. सो नाउडेज इफ यू गोइंग टू सी, कितने लोगों ने तो ये अभी देखो ये बहुत ट्रेंड में चल रहा है, रोबोटिक असिस्टेंट इन अ सर्जरी. Robotic assistant in a surgery. Monitoring trade in a stock market to see if insider trading is going on. So this is done through the AI. अब उसको क्या समझने वाला है कि भाई insider trading चल रहा है या नहीं चल रहा है. So that is a such type of algorithm is say कि भैया ऐसा बल्क चीजें कुछ दिखा या ऐसा कुछ type of trading दिखा. So you need to note and you need to analyze that कि this type of trading is come in the
इनसाइडर ट्रेडिंग चालू है क्या कुछ, यू नीड टू चेक दैट। सो दिस इज द पॉसिबल थ्रू द एआई, बिकॉज तुम वहां पे एक ह्यूमन बीइंग को बिठाते थे, उस सब ट्रेडिंग को ऑब्जर्व करता था और बाद में बोलता था हाँ यहाँ पे कुछ तो लग रहा है, बट नाउ इट इज डन बाय द सॉफ्टवेयर, इट इज डन बाय द कंप्यूटर्स। सो दे आर बोथ आर डूइंग द सेम जॉब। ह्यूमन बीइंग इन फ्रंट ऑफ द पीसी, दे आर जस्ट ऑब्जर्विंग द ट्रेडिंग ग्राफ एंड ट्रेडिंग ऑपरेशन की कितना ट्रेड हो रहा है, वॉल्यूम इज अदर पैरामीटर्स, एंड दे विल एनालाइज कि भाई कौन से टाइप का ट्रेडिंग है। बट सेम थिंग इज डन थ्रू द एआई, दोनों काम सेम ही हो रहा है, तो यहाँ पे ह्यूमन बीइंग का एफर्ट कम होता है। सो दैट्स कॉमन है। यहाँ पे रोबोटिक असिस्टेंस इन सर्जरी, what they are going to do, they are going to be assist, they are going to help to do the surgery. Now this is not that much, अभी तक इतना लेवल तक आया नहीं इंडिया में, but definitely it is going to be a thing. Understanding the language, अभी assemblies में देखा रहेगा ना, everyone is using their own language। अब मुझे तमिल तेलुगु नहीं आता तो क्या करने का, वो सामने वाला स्पीकर क्या बोल रहा है, सामने वाला मिनिस्टर क्या बोल रहा है, वो कैसे समझेगा? यस, गूगल ट्रांसलेट। so you are just using that artificial intelligence, वो फिर जिसको समझ में नहीं आता या वॉल्यूम का, they are taking the one earphone and putting their ear, और फिर ये they are getting there in own languages permitted, so that is done through the AI। अब AI क्या करता है, अब उसकी जगह पे ह्यूमन बीइंग रखोगे तो ह्यूमन बीइंग भी सेम अपन है, वो क्या बोलेगा लाइन वो सुनेगा, ट्रांसलेट करके तुमको बताएगा। दैट इज ह्यूमन बीइंग कि भैया सुनेगा, यहाँ वो क्या कर रहा है, वो क्या ले रहा है, रिसीव कर रहा है, ट्रांसलेट कर रहा है, और अगेन यू आर टेलिंग टू डू सेम थिंग डन थ्रू द एआई। यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग द लैंग्वेजेस, लैंग्वेज कौन सा है, कन्वर्ट इनटू इंग्लिश टू हिंदी, तमिल टू इंग्लिश, अदर्स जो भी चाहिए अकॉर्डिंग। स्टीयरिंग और ड्राइवलेस कार क्या करता है यहाँ पे, यदि ड्राइवर रहेगा तो क्या करेगा, they are going to see the path and they are going to sense the some means तुम्हारा व्हीकल क्या अराउंड 20-30 मीटर्स के रेंज में ऑब्जेक्ट को ये करते हुए ब्रेकिंग एंड स्टीयरिंग अदर पैरामीटर दे आर गोइंग टू ऑपरेट। नाउ सेम थिंग इज डन थ्रू द एआई। नाउ व्हाट इंपॉर्टेंट पार्ट इज व्हाट दैट एल्गोरिथम्स, टू कनेक्ट ऑल द एल्गोरिथम्स, ये 10 मीटर पे क्या है, वी नीड take the left turn, we need to take the right turn, or we need to should stop. So everything is done through the algorithms, so that all algorithm is going to be connected to each other and they are going to perform the output. If you have done through the only steering mechanism, तो steering mechanism क्या ऑपरेट होने वाला है, you are going to send the instruction कि भैया ये पाथ पे जाना है क्या, तो after 10 minutes you need to take the left turn, you need to take the right turn, so that is done। But if you are going to see the driverless car, सो ड्राइवरलेस कार तो ड्राइवर नहीं है, तो ड्राइवर का जितना भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटीज इज डन थ्रू द एआई। अब वो एआई को अभी क्या ह्यूमन बीइंग में कहाँ पे आंख एक सेंसर हो गया, ईयर्स एक सेंसर हो गया, ओके, सो ये सब सेंसर के थ्रू दे आर कन्वर्टिंग द रिक्वायर्ड थिंग्स एंड दे आर परफॉर्मिंग कि भैया ब्रेक मार लो, टर्न ले लो। अब उसको कहाँ पे इनपुट कैसे मिलने वाला है, जो एआई प्रोग्रामिंग उसको इनपुट मिलेगा, उसके अकॉर्डिंग दे आर गोइंग टू वर्क ना, कि भैया हाँ ऑब्जेक्ट 10 मीटर पे है तो मुझे स्लो डाउन होना है, उसके पहले तो रुकना भी पड़ेगा ये लगा, तो नहीं तो पता चला रे कोई तो रोड के सामने से क्रॉस कर रहा है, तो उसको कैसे समझा कि ये रोड के सामने से कोई क्रॉस कर रहा है। यस, हाउ इट इज डन इन ड्राइविंग कार में, कैसे जाते हैं, 8 से 10 सेंसर्स रहते हैं। There is a sensors, that is the sensors कि they are going to detect the each and everything, including the sound, including the distance, obstacles, human beings, everything is going to be detected and that thing is sending as a input। जो हमारा जो बॉडी में इनपुट ईयर एंड आईज से जाता है, उनका वो सब सेंसर से that is going to be input। And important part is again, it's look like a simple, but if you are going to see that input we need to convert into operation, that is done through the AI। बिकॉज ह्यूमन बीइंग जो करता था, अब हमने बोला मशीन कर, रोबोट्स कर। ओके, सी autonomous planning and scheduling of tasks aboard a spacecraft, so this is nothing but the, if you are going to see each and everywhere, यहाँ पे चेस के साथ भी देखा रहेगा, बहुत सारे ह्यूमन बीइंग एंड चेस का कंपटीशन देखा है क्या, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थ्रू ह्यूमन बीइंग, if you can find out the videos on the YouTube।
यस, देखा किसी ने? यस सर। यस। सो कितने, अजय अभी तो कितने लोग मोबाइल पे खेलते हो ना चेस? खेलते हो चेस मोबाइल पे? हाँ सर। तुमने? chess.com। यस बेटा। हाँ सर, सर्वर पे। सर्वर पे खेलते हो, वॉट एवर, जहाँ भी खेलते हो, लेकिन तुम खेलते हो, तुम्हारे अपोजिशन में तो क्या खेलता है? कंप्यूटर खेलता है। अब तुम कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले, कौन सा स्टेप लेने वाले, उसके अकॉर्डिंग उसका सब चीजें हो रहा है। मतलब वो इस रिएक्ट एज ए ह्यूमन बीइंग, दे आर ऑब्जर्विंग योर स्टेप एंड अकॉर्डिंग टू दैट दे आर परफॉर्मिंग देयर स्टेप। ओके, सो दैट इज डन थ्रू द एआई। मतलब सोचो ना कि कितने टाइप का, कितने लाइन का एल्गोरिथम्स लिखना पड़ता रहेगा। ऐसा नहीं तो ऐसा, ऐसा नहीं तो ऐसा, ऐसा नहीं तो ऐसा, इसमें घूमते रहेगा। सो इट्स अ डिफिकल्ट पार्ट, बट दिस डिफिकल्ट पार्ट ह्यूमन बीइंग की लाइफ को एकदम इजी कर दिया। ओके, सो दिस इज अ नीड ऑफ द एआई। इफ यू आर गोइंग टू सी अ मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, products, paint, cosmetic, coating, food and beverages, others. See, जितना भी small industries है, nowadays they are trying to replace the manual to AI based system. क्योंकि sometime AI broadly affect करता है तुम्हारा प्रोडक्शन। Why we are saying that broadly affect करता है कि AI is going to observe the market demand as well as your raw material demand as well as your production. और 3 is going to be observed by the one of software कि भैया यहाँ से डिमांड इतना बढ़ रहा है, यहाँ पे डिमांड इतना कम हो रहा है। अब वहाँ पे किसी को डेटा भी अपलोड नहीं करने कि डिमांड सही में बढ़ गया है करके। जितना तुम्हारा रॉ मटेरियल गया है, अभी तुमने यहाँ पे एक वीडियो में देखा है, सिर्फ पिक दे कप के किया और बाद में दे डिसाइड कि नहीं लेने का है, तो डायरेक्टली दे हैव डिटेक्टेड फ्रॉम देयर, जैसे पिक किया तो एडेड इन देयर अकाउंट, बट जैसे रख दिया तो डिटेक्टेड फ्रॉम देयर अकाउंट। सो सिमिलरली ऐसे सिस्टम के थ्रू यू कैन डिजाइन कि भैया आउटपुट कितना गया, तो वी हैव मैन्युफैक्चर दिस वन, और एक्सपेक्टेशन की इतना टाइम पे जाने वाला है रॉ मटेरियल, मतलब फिनिश प्रोडक्ट इज गोइंग टू बी आउट फ्रॉम द मार्केट, बट रैपिडली हो रहा है, फास्ट हो रहा है। सो डायरेक्टली आई विल इंडिकेट भैया बहुत ज्यादा हो रहा है, मींस डिमांड इज क्वाइट हाई, इन विच रीजन, कहाँ पे, वो सब चीजें भी एनालाइज करके तुमको इजीली मिल जाने वाली है। सो दैट इज डन थ्रू द एआई। नहीं तो फिर क्या करना पड़ेगा, 2 आदमी रखो, पता कर भाई किसने कितना बेचा है, क्या किया है, उसके बाद यू आर गोइंग टू गैदर द डेटा, और डेटा पे एनालाइज करके जब तक तुम सेंड करोगे पता चला डिमांड यहाँ पे वापस चेंज हो गया, जो पीक पे था वो लोअर पे आ गया, तो प्रोडक्शन बढ़ा के क्या मिलने वाला है। सो जो एग्जाम्पल था वीडियोस में कि जब भी 70th सेंचुरी चालू था, उसमें किसी को थिंकिंग नहीं था कि इट इज पॉसिबल टू go through by this speed, go through by the bullet train, go through by the ऐसा। पहले क्या था, रेलवे क्या है, यदि 40, 50, 60 की स्पीड तो बहुत हो गया। बाइक, नॉर्मल बाइक दिखता था, दैट इज मोर देन इनफ फॉर मी। बाइक है, वो भी ऐसा बाइक है, ठीक है, बट आफ्टर 2000 मेन चेंजेस स्टार्टेड, मेन पिक्चर ऑफ एआई स्टार्टेड कि भैया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अफेक्टेड द एवरीथिंग, and everyone trying to implement this AI in their own industry because this reduce the human effort and precision will increase. So that's why we are studying what is the role of AI in design and manufacturing. अब डिजाइन कर लिया कंपोनेंट, तुम डिजाइन करोगे तो यू आर गोइंग टू सी कि भैया ये मटेरियल ले लो, ऐसा ऐसा करके यू जस्ट डिजाइन द कंपोनेंट, बट एआई विल डिजाइन, सो इज गोइंग टू सी द ईच एंड एवरी पैरामीटर कि भैया हमको मटेरियल ये लेना है, तो मटेरियल लेने के लिए क्या क्या अवेलेबिलिटी है, कितने दिन में आएगा, एवरीथिंग इज नाउ अवेलेबल इन नेट। सो दे आर गोइंग टू पिक द डेटा फ्रॉम देयर एंड दे विल स्टार्ट देयर वर्क। हाँ, अभी मैंने तुमको एक डिजाइन दिया, ऑलरेडी आई थिंक यू डन विद द डिजाइन, राइट? डिजाइन में तुमने एक स्पर गियर डिजाइन किया, ओके, और मैंने बोला कि एक काम करो, इसका मटेरियल चेंज कर लो, तो तुमको क्या करना पड़ेगा? यस, यू नीड टू डू अ फुल रीडिजाइन। नहीं सर, सिर्फ ऑप्शन में जाके मटेरियल चेंज करना। किसमें? एआई रहेगा तब ना। यस सर। If you are going to do manually, तो manually के टाइम पे क्या बोला मैंने बोला, you just change the material, yeah, you just change the face weight, and with that you need to check that कि all conditions satisfy हो रहा है कि नहीं।
तो वो टाइम बोलेगा सर टाइम लगेगा क्योंकि मुझे मैन्युअली सब कैलकुलेशन करना पड़ेगा, वापस से पूरा रीडिजाइन करना पड़ेगा। बट व्हेन यू आर यूजिंग दिस सच टाइप ऑफ एआई टर्म्स, तुम क्या कर रहा है, बिहाइंड द स्क्रीन जो तुम कैलकुलेशन करने वाला वही कैलकुलेशन कर रहे हो, दैट इज रिप्लेसिंग द ह्यूमन बीइंग, दैट इज एआई। सिर्फ तुमने इनपुट चेंज कर दिया, नाउ C45 की जगह पे C30 मटेरियल यूज करो, चलो वो बोलेगा C30 ले भाई ये डेटा हो गया। उतना करने के लिए यू विल टेक अ मच टाइम, सो दैट इज डन थ्रू द एआई। सो दैट्स व्हाई एवरीवन इज ट्राइंग टू गेट द स्क्रिप्ट, कोडिंग स्क्रिप्ट लिखने का ट्राई करते हैं कि भैया एक ही बार मच करने का, एक ही बार जो एफर्ट लगने वाला है लगने दो, बट वंस विल गेट दिस वन इट विल फॉर द फुल पीरियड, मतलब जब भी मुझे कुछ डेटा चेंज करना है accordingly I will get the output. So that is the possible through only AI. So small, abhi if you are going to see the small mechanism of delivery, जो तुम्हारा प्रोडक्ट डिलीवर होता है, तो उसमें पहले क्या होता था कि भैया यहाँ पहुंच गया तो एंट्री करता था कि भाई ये एंट्री हो गया, एंट्री करके रखने का ऐसा, तो कहीं पे ट्रेस नहीं रहता था कि कहाँ पे ऑब्जेक्ट है, कहाँ पे तुम्हारा डिलीवरी ये है। लेकिन फिर क्या आया कि भैया जो है वो पीसी में इंटरनेट पे अपलोड कर दो। अब क्या हो गया, सिर्फ स्कैन करो और जाने दो, इधर क्या है किसी कुछ ले रहा है, स्कैन किया हाँ भाई यहाँ पे है। सो एवरीथिंग इज डन थ्रू दैट। सेम थिंग मैन्युफैक्चरिंग, जब हम लोग पढ़ रहे हैं एआई इन डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग, तो डिजाइन पैरामीटर वी आर गोइंग टू राइट द वन प्रोग्रामिंग दैट इज कॉल्ड द स्क्रिप्ट, and you can change your input and accordingly you can get the output, and definitely it will consume it will reduce the human effort and time. Similarly you can implement in this mechanical and electrical production line में पेंट के लाइन, अब पेंट के लाइन में एआई क्या हेल्प करेगा, यस कॉस्मेटिक में क्या हेल्प करेगा एआई, यस See, important line is this: any mid-size of manufacturers, कोई भी small manufacturer रहेगा ना, हाँ, जो ये सब कंपोनेंट बनाते हैं, definitely they will think for the AI. AI मतलब रोबोट नहीं होता है, स्क्रिप्ट भी AI जैसा ही वर्क करता है, मतलब ह्यूमन बीइंग का दिमाग तो वहां पे लगना चाहिए, वैसे AI एक पार्ट ऑफ माइंड काम करने वाला है। तो कैसे काम करेगा, यस पेंटिंग, कॉस्मेटिक, कोटिंग, फूड एंड बेवरेज, इसके लिए कैसे काम करेगा ये, यस एआई हाउ इट विल वर्क। सर वो चेक करता रहेगा कि पेंट बनाने के वक्त उसको कौन कौन सा रॉ मटेरियल बराबर डाला है नहीं डाला है, वो ह्यूमन चेक करने के बजाय एआई कर देगा। अभी क्या होता है जब भी हम लोग देखो यहाँ पे जब मैन्युफैक्चरिंग के लिए हम लोग पेंट की बात करते हैं तो वी नीड लॉट्स ऑफ पिगमेंट्स, बहुत सारे पार्टिकल्स, पिगमेंट, कलर्स, एडिटिव्स, बहुत सारी चीजें चाहिए रहता है, ठीक है। एंड व्हेन वी आर मेकिंग एनी पेंट तो हमको क्या चाहिए रहता है, वी नीड अ क्वांटिटी, ये भैया इतना ही क्वांटिटी में डालना चाहिए। आजकल तो आई थिंक लॉकडाउन में बहुत सारे तुम्हारे क्लासमेट वगैरह के, आई थिंक थर्ड ईयर में थे तुम लोग, फाइनल ईयर के बहुत सारे बच्चे जो एमएस करने आते, दे आर कुकिंग लॉट्स ऑफ द थिंग्स एंड दे आर पोस्टिंग ऑन देयर व्हाट्सएप स्टेटस कि भैया मैंने आज ये बनाया, ये बनाया। कैसे बनाया, आई रेफर दी गूगल का वीडियो और बनाया वहाँ पे, लेकिन गूगल में बनाया तो अच्छा दिख रहा था यार, मतलब सॉरी यूट्यूब पे वीडियो देखा तो यूट्यूब पे जो बनाया ना मस्त दिख रहा था, तो मैंने भी सब ऐसे ट्राई किया लेकिन मेरा उतना अच्छा बना नहीं। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, यस आर यू गेटिंग माय क्वेश्चन? प्रेजेंटेशन नहीं बेटा, प्रेजेंटेशन नहीं, देखो क्या होता है, व्हेन यू आर गोइंग टू सी द प्रोफेशनल कुकिंग वीडियोस, सो देन यू कैन सी दे आर ऑलवेज टॉकिंग द क्वांटिटी विद द मेजरिंग कप एंड मेजरिंग पैरामीटर के साथ बात करते हैं कि इतना मैंने ये डाला, इतना मैंने ये डाला और इतना टाइम किया, इतने स्लो स्टीम पे इतने टाइम पे पकाया, फिर इसके बाद मैंने हाईएस्ट स्टो किया, फिर लो स्टो किया, सो अकॉर्डिंग टू दैट दे आर गेटिंग द आउटपुट। बट हम लोग देखने के बाद क्या करते हैं, ठीक है ना इतना प्रोपोर्शन हुआ तो और माइंड विल कैलकुलेट कि चलो ठीक है इसके हिसाब से इतना लेके वी कैन प्रोसीड, गॉट इट? सो व्हेन यू आर नॉट एंटरिंग द प्रॉपर क्वांटिटी, सो डेफिनेटली योर आउटपुट विल बी डिफरेंट, right? So same with the paint, if you're not adding the proper pigments, proper additives, so it is not possible to get the every time same type of the paint. तो पता चला पहला केन लेके गया तो थोड़ा डार्क में चल रहा था, दूसरा लेके गया तो थोड़ा सा ब्राइटनेस था, yes it is possible.
हेलो, यस सर। सो ये कितना इजी हो गया कि भैया अब हमने प्रोग्रामिंग कर दिया है, उधर लगा दिया है, वो इतना ही अमाउंट उठाएगा और डालेगा, मुझे ज़्यादा कुछ सोचने का जरूरत नहीं। तो मेरा चीज़ें एज इट इज़ मिलने वाली हैं, as it is we are going to get the output, but that is not possible every time through the manual operation. After manufacturing complete होने के बाद भी AI is going to see the market requirement कि भाई तुमने जो प्रोडक्ट बनाया है पेंट या कॉस्मेटिक, दैट इज डिलीवर्ड हो गया या नहीं हो गया। डिलीवर्ड नहीं हो गया तो ऑलरेडी मेरे वर्क स्टेशन पे वो है, मैं दूसरा बना के कहाँ रखूँगा, या मेरे पास स्टोरेज नहीं है। सो एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड, अकॉर्डिंग टू दैट यू कैन फ्लक्चुएट योर ऑपरेशंस। डिलीवर हुआ या नहीं हुआ, डिलीवर होने के बाद डिमांड कैसा है, एवरीथिंग इज गुड। सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट स्मॉल स्केल, तो वो क्या बोलते हैं, थोड़ा सा हमको तो एआई चाहिए, एकदम मैनुअल बेस्ड लिया तो पता चला 6 बार मैंने वो प्रोडक्ट बनाया और 6 अलग अलग तरह के बनेंगे, हमेशा विल गेट सम वेरिएशन। बिकॉज ऑफ दिस एआई एंड रोबोटिक्स वी आर गेटिंग दिस सेम टाइप ऑफ, मैंने पार्ले जी बिस्किट अभी खाया और कल खाया तो बहुत बार ऐसा लगता है कुछ अलग टेस्ट आ रहा है, प्लीज इसको ना बहुत ज़्यादा ब्राउनिश कर दिया इसने। ये एआई होने के बाद भी पॉसिबिलिटीज है, लेकिन दैट पॉसिबिलिटीज आर वेरी लेस। दिस डजंट मीन कि इफ यू आर यूजिंग द एआई तो 100% आई एम गेटिंग द प्रिसाइज आउटपुट एवरी टाइम, नो, देयर इज अ चांस ऑफ एरर, एंड बिकॉज ऑफ दैट एरर यू कैन फाइंड आउट कि वहाँ पे तो सब मशीन है, टेम्परेचर सेट है, सब क्वांटिटी वाटर ये सब मिक्स होकर वहाँ पे आउटपुट जाने के लिए आ ही रहा है, बट वी आर नॉट गेटिंग दैट मच टेस्ट, और वो नहीं मिलता, क्यों नहीं हो रहा जैसे। So this need of AI is now very high in a small scale industries, mid-sized range जो भी industries है, they are preferring this AI। जितना ज़्यादा मेरा precise रहेगा उतना ज़्यादा मेरा जो cost of product रहेगा वो कम होएगा, and production is going to be smooth and faster. So मेरा losses is going to be less if I am trying to apply the AI। तो सर AI तो ह्यूमन बीइंग है, तो ह्यूमन बीइंग रख के हमको वहाँ पे देखो, वहाँ पे क्या बोल देते हैं कि भैया पहले मुझे वो रूट कंप्लीट करने के लिए भी ना यूजिंग सब प्रेस करने के लिए क्या यूज कर रहे थे वो, यस व्हाट इज दैट, वीडियो देखा ना, वीडियो में दे आर मेकिंग द रोड, उतना प्रिसाइज रोड इनिशियली आज से 20-25 इयर्स बैक इट वाज पॉसिबल। हेलो, I think chalo, why need for AI aim to reduce all the idle time of machine and labor to nearly zero। मेरा पहला एम क्या है कि भैया जितना भी मेरा मशीन है वो आइडल ना रहे, तो दिस इज द रोल ऑफ AI टू डिस्ट्रीब्यूट द वर्क, टू शेड्यूल द वर्क, टू लेबर को असाइन करना, एवरीथिंग इज डन थ्रू द AI बोले वहाँ पे सुपरवाइजर की जगह पे AI आ जाएगा कि भाई तू इधर चला भी, तेरा काम हो गया, तुम वो मशीन पे वर्क अलॉट होना चाहिए, क्योंकि वो मशीन का ऑलरेडी 30 मिनट्स से या 1 आवर से रन हो चुका है। सो दैट मशीन शुड बी रेस्ट फॉर 5 मिनट्स, और 10 मिनट्स का जो उसका आइडलिंग टाइम है रहना चाहिए, नहीं तो बैक टू बैक वर्क देना है, दैट एवरीथिंग इज डन थ्रू द AI। सो मिसिंग ऑफ द एनी मशीन और मिसिंग ऑफ द लेबर इज गोइंग टू बी रिड्यूस। नहीं तो क्या हो जाएगा, वो कह रहे मेरे ध्यान से निकल गया कि मशीन खाली है, दैट इज वेरी लेस पॉसिबिलिटीज इन AI। They are going to see all the channels, all the workstations, all the requirement, and they according to send the result। Aim to increase the product range within the domain। जो तुम्हारा product range है वो तुम्हारे domain में they will try to increase the things। Aim to mixing the product range and minimize the overheads। Aim to have the order book full by diversifying your product range। So this is nothing but the need of AI in a manufacturing and design। Help in decision making। तो अभी यहाँ तक तो हमारा ठीक था, यहाँ तक हमने अभी क्या देखा, what is the role of AI, how is AI will work। Now we'll see the knowledge based engineering, yeah, knowledge based system। Yes, anyone having any idea regarding the knowledge based system? Yes, किसी को कुछ आइडिया है?
व्हाट इज अ नॉलेज बेस्ड सिस्टम या नॉलेज बेस्ड इंजीनियरिंग? सर इसमें एआई हमको प्रेडिक्ट करके बताता रहता है कि ऐसा डिजाइन करो, ये मटेरियल ले लो। अभी क्या होता है कि ये चीज़ें ह्यूमन बीइंग में बहुत इजीली पॉसिबल रहती है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग को हमेशा एक्सपोजर मिलता है। ये डिजाइन मटेरियल यू आर गोइंग टू रेफर द नंबर ऑफ द बुक्स, ओके। बाहर का कुछ चीज़ें नया इनपुट आया या बाय द एक्सपीरियंस यू आर लर्निंग द थिंग्स, दैट इज नॉट पॉसिबल बाय द एआई ना। एआई को क्या एक्सपीरियंस, उसको तो एक भाई रोबोट जैसे ही वर्क कर रहा है, मतलब उसका रूटीन है भाई ये ऐसा ऐसा है तो ऐसा ऐसा करने का। लेकिन कुछ चीजें एक्सीडेंटली या बाय द टाइम बीइंग दे आर नॉट गोइंग टू बी लर्न। कुछ चीजें सीखने वाला नहीं है, तो वो जो चीजें सीख नहीं रहा है उसको एज ए इनपुट देना है मुझे, ओके। सो यहाँ पे जो ये है मेरा नॉलेज बेस्ड सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम है कि दैट सिस्टम इज गोइंग टू बी कंटेन देयर लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन, बहुत सारे इंफॉर्मेशन इज गोइंग टू बी कंटेन इन दैट पर्टिकुलर लाइब्रेरी, and that information may be gathered from the expert, may be gathered from the books and any other resources, जो भी resources available है वो ऐसा रहेगा कि भाई ऐसा हुआ तो एक्सपर्ट बोलता है ऐसा करना चाहिए, तो वो एक्सपर्ट को कहाँ से समझा, बिकॉज दे हैव वर्क ऑन द फील्ड एंड दे हैव एक्सपीरियंस कि भैया ऐसा ऐसा हुआ था तो दैट टाइम आई हैव परफॉर्म दिस, सो एंड अस वी विल गेट द इजली सॉल्यूशन मिल गया मुझे by performing this operation. So now the experts are getting this from the experience, but AI को possible नहीं था। तो ये जो expert का opinion है related to this condition, we are going to store in a knowledge based system. And if AI is facing such type of problem, so they can refer this knowledge based system कि भैया ऐसा ऐसा हुआ, हम ऐसा कर सकते हैं। तो ये मेरा क्या होगा कि यहाँ पे नॉलेज बेस्ड सिस्टम में मेरे को हेल्प करेगा कि उस टाइम पे भी अटका तो क्या डिसीजन लेने का, क्या ऑपरेट करना। तो डिसीजन लेने के लिए क्या होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। मुझे पता नहीं है कि भाई ये मशीन बंद हो गया तो मैं क्या करूँ, मशीन बंद करके छुट्टी दे दूँ सबको, या आई कैन प्रोवाइड दियर सम अल्टरनेटिव ऑप्शन। कैसे रहेगा, इफ यू हैव अ नॉलेज ऑफ दैट मशीन, सो यू कैन कि भैया तो 5 मिनट में बनने वाला है, इट विल टेक 30 मिनट्स, तो 30 मिनट्स के लिए सबको बोलो आज तो मैं कहीं टू रिपेयर दिस इन 30 मिनट। पता ही नहीं भाई बनेगा नहीं बनेगा, कुछ पता ही नहीं है, तो क्या करने वाला, यू कांट परफॉर्म एनी ऑपरेशन ना। सो ये कैसे समझा कि भाई ये प्रॉब्लम आया है तो इतना मिनट लगने वाला, इट विल टेक दिस मच टाइम टू रिपेयर, या इतना मशीन टाइम होने के लिए इतना टाइम लगेगा। इफ एनी मशीन इज गेटिंग एनी प्रॉब्लम, सो इट विल टेक हार्डली 10 to 15 मिनट्स टू रिपेयर। तो कैसे समझा, भाई कितना टाइम लगेगा पूछते हो, मोबाइल बनाने वाले को पूछते हो मोबाइल कितना टाइम लगेगा भाई बनाने के लिए, और सर 1 घंटे में हो जाएगा। उसको कैसे पता 1 घंटे में, ऑलरेडी दे हैव डिड दिस थिंग्स, वो ऑलरेडी उन्होंने किया हुआ, दैट्स व्हाई दे नो। तुमको बोलेगा यार पता नहीं खोलने के लिए कितना टाइम जाएगा, मैं इसको खोलूंगा रिमूव करूंगा नहीं होएगा, सो दैट इज वेरी कंफ्यूजिंग, नहीं किया हुआ। सो वो एक्सपर्ट का क्या क्या करना है, कैसे ऑपरेशन करना है, किस उसको कैसे ऑप्टिमम वे से किया था परफॉर्म, एवरीथिंग इज गोइंग टू स्टोर इन अ नॉलेज बेस्ड सिस्टम। So this help in decision making, integration of design and manufacturing process can be achieved with a knowledge based system. पहला तो हमने आगे बोला AI को हमको डिजाइन में लेके आना है, मैन्युफैक्चरिंग में लेके आना है, लेकिन हम दोनों को मुझे कनेक्ट करना है। पता चला मैंने मस्त वाला डिजाइन बना दिया लेकिन वो मैन्युफैक्चरिंग होना पॉसिबल नहीं है, मस्त वाला डिजाइन बना दिया बट दैट इज नॉट पॉसिबल टू मैन्युफैक्चर। क्यों, अरे भैया वो मशीन ही नहीं है रे अपने पास, तो मशीन खरीदने का नहीं, ऐसा प्रॉब्लम हुआ तो तकलीफ हो जाएगा, प्रोडक्ट बहुत महंगा पड़ेगा। सो when we are going to do a such type of design, so manufacturing is already integrated with the design, so they will suggest भैया ऐसा कुछ मत कर, अपने पास ऐसा कुछ नहीं है, so we need to do this. So we need to integrate the things, design and manufacturing, and सब डेटा स्टोर कहाँ पे रहेगा, that is stored in a knowledge based system. So इसी को हम लोग बोलते हैं नॉलेज इंजीनियरिंग। नॉलेज इंजीनियरिंग में क्या आता है कि सबसे इंफॉर्मेशन गैदर करने का और एक अपना खुद का एनालिसिस करने का कि भैया ऐसा 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 है। ओके, सो जस्ट लेट मी शो यू वन डायग्राम एंड ये देखो, दिस इज नॉलेज इंजीनियरिंग एंड दे आर टेकिंग दियर इंफॉर्मेशन फ्रॉम ये डोमेन एक्सपर्ट एंड डॉक्यूमेंट नॉलेज। अब ऐसा भी हो सकता है कि भैया देखो एरर्स इन बोथ द साइड, मींस दे कैन शेयर द नॉलेज आल्सो विद देयर डोमेन एक्सपर्ट। वो इसमें जो भी एक्सपर्ट है
they can get the information, they can ask कि भैया ऐसा होगा तो ऐसा हुआ तो they can get the vice versa. Similarly from the document knowledge कि भैया इसने बोला ऐसा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है यदि ऐसा हुआ तो क्या, तो you can check the from the document knowledge कि हाँ ऐसा हुआ तो ऐसा information है अपने पास कि we can perform this way. So lots of information, two way we can gather and we can do the knowledge engineering, and that data we are going to transfer to the knowledge base system. This is a knowledge base system, and this knowledge base system is going to be an interface. ये जो पूरा का पूरा सिस्टम है ये क्या करेगा, इंटरफेस विद द यूजर एंड अदर पार्ट. सो यहाँ पे ये जो सिस्टम है, दैट सिस्टम इज गोइंग टू बी हेल्प अस टू द डिसीजन मेकिंग. ओके, सो व्हेन यू आर गोइंग टू सी हियर द नॉलेज बेस्ड सिस्टम आर कॉम्प्लेक्स रूल बेस्ड सिस्टम दैट हेल्प इन सॉल्विंग प्रॉब्लम दैट आर सॉल्व बाय द एक्सपर्ट. मतलब जो जितना भी चीजें हैं सॉल्व करना पॉसिबल है. यदि एआई के लिए एल्गोरिथम लिखा है तो तुमने कुछ सिलेक्टिव कंस्ट्रेंट लिखा है उस समय जो तुमको पता था, लेकिन बाहर टाइम टू टाइम चेंजेस हुआ तो उसको भी एज ए इनपुट ले सके, ऐसा कुछ एक्सपर्ट का जो इनपुट है वो भी ले सके, वैसा भी हेल्प करता है डिसीजन मेकिंग के लिए. द नॉलेज बेस्ड सिस्टम इज नॉट अ जेनरिक इंटरफेस इंजन एंड और रीजनिंग इंजन. ऐसा नहीं है कि भाई उसको पूछते बैठो अरे ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों. दैट इज नॉट, दे आर गोइंग टू शेयर देयर थॉट्स कि ऐसा है तो ऐसा है. ओके, सो if you are going to see here, next lecture will again talk about the knowledge based engineering. Try to find out the difference between AI, API and IoT. ये चीजों को एक बार जरा देखो. Nowadays these three are very high trending, मतलब हर जगह ट्रेंड कर रहा है. ट्रेंड हर जगह क्यों कर रहा है, क्योंकि ये आज के टाइम पे मैक्सिमम थिंग्स आर कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर बेस्ड. So basically we need to see the requirements कि चीज़ें कैसा चल रहा है, तो we are implementing that software and other parameter in our mechanical field. So if you are going to search the things, AI to try to search related to mechanical, API try to search through the mechanical, IoT mechanical. IoT तो बहुत सारे ACE ये सब बहुत है, but try to search for the mechanical systems. So then you get the idea कि जो भी चीजें हो रही है कुछ जादू नहीं है. Everything is a coding. That's why nowadays the software engineering is very at the high level. उसका reasoning ये है क्योंकि everything is going to be, but we'll get very high things from them. कि भैया हमारा जो सिस्टम है हम यदि उसको अपने सॉफ्टवेयर के थ्रू रन करने वाले हैं तो विल गेट ए वेरी हाई अपॉर्चुनिटी, क्योंकि हमको पता है कि भैया ये सॉफ्टवेयर से बाकी सब चीजें हो सकती है लेकिन उसमें मैकेनिकल मशीन्स लगने वाले हैं, तो वो चीजों को हमको ऑप्टिमाइज करना है, तो हमको दोनों का नॉलेज होना चाहिए. सो दैट्स व्हाई वी आर लर्निंग एआई, आईओटी, एपीआई. इसलिए हम लोग कैड के में लर्न कर रहे हैं. ये तो हम सिर्फ मशीन के बारे में पढ़ते हैं, ये क्यों चाहिए सॉफ्टवेयर, ये सब क्यों चाहिए, क्योंकि तुमको जब दोनों तारीख से पता रहेगा देन यू कैन परफॉर्म बेटर. Okay, so just try to find out the difference between these three parameters and how they are work in this mechanical field, and in next lecture we'll talk about more on this API and AI, and after that we'll move to the next one. Okay, anyone is having any doubt then they can ask. Yes, anyone is having any doubt? Yes or no? I'm audible? Yes sir. Yes, sir. Okay, then you can leave now. Thank you. Save it. Thank you sir. Yes, again please leave the meeting. Thank you, sir.